کیا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ رہتے ہوئے بے چینی محسوس کی ہو لیکن یہ سمجھ نہ پائے ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ شاید یہ ان کے بولنے کا انداز ہو، ان کے چھپے ہوئے رویے یا ان کی خاموشی کچھ تو عجیب لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کے ارد گرد نیک نیت نہیں ہوتا، اور بعض اوقات برے دل کی علامات واضح طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پر دھیان نہیں دیتے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بری صحبت آپ کی روح کو آپ کی توقع سے زیادہ تیزی سے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خبردار کیا۔ نیک اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے اور لوہار کی ہے۔ مشک بیچنے والا یا تو آپ کو خوشبو دے گا، آپ اس سے خرید لیں گے، یا کم از کم اچھی خوشبو سے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن لوہار یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا یا آپ کو بدبو میں مبتلا کرے گا۔ اس ویڈیو میں ہم 7 واضح نشانیاں بیان کریں گے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے ارد گرد کسی کے دل میں آپ کے لیے بری نیت ہو سکتی ہے، اور آپ اپنے ایمان، دل کی سکون اور حفاظت کے لیے ان اسلامی تعلیمات کو کیسے اپنائیں۔ یہ نشانیاں محض اشارے نہیں ہیں، یہ آپ کو خبردار کرنے کے لیے ہیں۔ نشان نمبر 1، وہ ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں۔ برے دل والے شخص کی ایک واضح علامت ان کی مسلسل منفی باتیں ہیں۔ حالات کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا تلاش کریں گے جسے وہ تنقید، شکایت یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کریں۔ ان کے الفاظ میں نہ کوئی حوصلہ ہوتا ہے، نہ کوئی امید، بس ایک زہریلی توانائی جو ان کے ارد گرد کے لوگوں کو تھکا دیتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں الفاظ کی طاقت کے بارے میں سکھاتا ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، لیکن برے دل والا شخص اس کے برعکس کرتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ کو شک کے بیج بونے، خوف پھیلانے اور نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو اٹھانے کے بجائے بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اتنا ہی آپ کی مثبتیت اور امید ختم ہوتی جاتی ہے۔ ایسے لوگ اکثر اپنی منفی باتوں کو حقیقت پسندی یا ایمانداری کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میں تو صرف سچ بول رہا ہوں، لیکن در حقیقت ان کا مقصد دوسروں کو اپنے لیول پر نیچے لے جانا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ عیب جو ہوتا ہے، نہ گالی دینے والا، نہ فحش کو، اور نہ ہی سخت مزاج۔ اگر آپ کسی کو مسلسل منفی باتیں کرتے دیکھیں تو اس سے وارننگ سمجھیں، اپنی سکون کی حفاظت کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ نشان نمبر 2، وہ دوسروں کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ برے دل والے شخص کی ایک اور اہم علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی ناکامیوں یا مشکلات سے خوش ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مدد یا حوصلہ افزائی کریں۔ وہ خفیہ طور پر یا کھلے عام کسی کی تکلیف پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ بے حسی نہیں بلکہ حسد اور کینہ پر مبنی رویہ ہے جو ان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں اس کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ ایسے لوگ اپنی حقیقی نیت ظاہر نہیں کرتے، لیکن ان کے رویے ان کے جذبات کو عیاں کر دیتے ہیں۔ شاید یہ ان کی لاپرواہی ہو جب آپ مشکل میں ہوں، یا ان کے چہرے پر وہ چھپا ہوا طنزیہ مسکراہٹ جو یہ ظاہر کرے کہ وہ آپ کی ناکامی
से खुश हैं। बाज औकात वो हमदर्दी का ड्रामा करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो आपके मसाइल को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद के बारे में खबरदार किया और फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि ये नेकियों को इस तरह खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। अगर आप देखें कि कोई शख्स मुसलसल हमदर्दी की कमी जाहिर करता है या दूसरों की मुश्किलात पर खुश होता है, तो ये एक वाज़ेह इलामत है। ऐसे लोगों से दूर रहें और इन लोगों का साथ दें जो आपके लिए दिल से खैर चाहते हैं। निशान नंबर 3, वो गैबत और चगली में जल्दी करते हैम्बरे दिल वाले शख्स की एक नुमायां खुसूसियत ये होती है कि वो गैबत और चगली को अपना मामूल बना लेते हैं। उन्हें दूसरों की इज्जत और वकार की परवाह नहीं होती और वे अफवाहें फैलाने, दूसरों की खामियां जाहिर करने और तनाज़ा खड़ा करने में खुशी महसूस करते हैं। कुरान करीम में गैबत की सख्त मजम्मत की गई है और ना किसी की गैबत करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम इसे नापसंद करोगे। ये लोग अक्सर अपने अमाल को ये कहकर जायज करार देने की कोशिश करते हैं, मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूं, लेकिन उनके अल्फाज एतमाद को खत्म कर देते हैं, ताल्लुकात को खराब कर देते हैं और दूसरों के बारे में गलत फहमियां पैदा करते हैं। उनकी बातों में शमूलियत करना और उनके कहे पर यकीन करना नुकसान को मजीद बढ़ा सकता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन लोग वो हैं जो दो चेहरों वाले हों। कुछ लोगों से एक तरह का रवैया रखते हैं और दूसरों से मुख्तलिफ। इड्रोसेम यूकरार, अगर आप देखें कि कोई शख्स मुसलसल दूसरों की गैबत कर रहा है तो ये एक खतरे की इलामत है। याद रखें, जो लोग दूसरों की बुराइयां आपके सामने करते हैं वो आपकी बुराइयां भी दूसरों के सामने करेंगे। ऐसे लोगों से बचें और खुद को उनकी जहरीली बातों से महफूज रखें। निशान नंबर 4, वो दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैम्बरे दिल वाला शख्स अक्सर ताल्लुकात को जाती फायदे के लिए एक आले के तौर पर देखता है। वो झूठ, खुशामद या एहसास जुर्म पैदा करके दूसरों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। उनके लिए लोग साथी नहीं बल्कि ऐसे वसाइल होते हैं जिन्हें वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकें। कुरान मजीद ऐसे धोखेबाज रवैये के बारे में फरमाता है, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं मगर वो सिर्फ खुद को धोखा देते हैं और उन्हें उसका शूर भी नहीं होता। ये लोग अक्सर जाहिरी तौर पर बहुत दिलकश होते हैं। वो आपको वही बातें कहेंगे जो आप सुनना चाहते हैं ताकि ऐसा जाहिर करें जैसे वो आपका वाकई ख्याल रखते हैं, लेकिन उनके हकीकी इरादे वक्त के साथ वाज़ेह हो जाते हैं। वो सिर्फ आपसे फायदा उठाना चाहते हैं, न कि आपको अहमियत देते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताल्लुकात की बुनियाद इखलास और बाहमी फायदे पर रखने की तालीम दी है और फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब शख्स वो है जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। अगर आप महसूस करें कि कोई शख्स हालात को अपने फायदे के लिए मोड़ने की कोशिश कर रहा है या आपको अपने उसूलों के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर कर रहा है, तो उसे खतरे की घंटी समझें। अपनी हिफाजत के लिए वाज़ेह हुदूद तय करें और इन ताल्लुकात को तरजीह दें जो इखलास पर मबनी हों। निशान नंबर 5, वो कंट्रोल के जुनून में मुब्तला होते हैं। बुरे दिल वाले अफराद को हर चीज और हर शख्स पर काबू पाने की शदीद ख्वाहिश होती है। वो अपनी मर्जी मुसल्लत करने के लिए धोखादही,
धूंस या दबाव इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को अपनी बात कहने या आजादाना फैसले करने की गुंजाइश नहीं देते। कुरान पाक ऐसे रवैये के बारे में फरमाता है, फिरौन ने जमीन में सरकशी की और वहां के लोगों को गिरवाहों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक गिरवाह को वो जुल्म के जरिए दबाता रहा। कंट्रोल का ये जुनून उनकी अदम तहफ़्फ़ुज़ का नतीजा होता है। वो दूसरों पर भरोसा करने या मामलात को कुदरती तौर पर चलने देने के बजाय हर चीज को अपने काबू में रखने की कोशिश करते हैं। वो इस रवैये को मदद या क़ियादत के नाम पर छिपा सकते हैं, लेकिन उनका असल मकसद ताकत को अपने कब्जे में रखना होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी और मुशावरत की मिसाल पेश की, यहां तक कि बतूर रहनमा फरमाया, कौम का रहनमा उनका खादिम होता है। अगर कोई शख्स काबू पाने के जुनून में मुब्तला हो और दूसरों को दुबाने या उन पर हुक्मरानी करने की कोशिश करे तो ये एक वाज़ेह इशारा है कि एहतियात करें। अपने लिए ऐसे माहौल और ताल्लुकात का इंतखाब करें जहां बाहमी एहतराम और ताउन को फौक़ीत दी जाए। निशान नंबर 6, वो हमदर्दी से खाली होते हैबरे दिल वाले शख्स में अक्सर हमदर्दी की कमी होती है। वो दूसरों के जज्बात और मुश्किलात को समझने या उन की परवाह करने से कासिर होते हैं। ये रवैया उनकी आपकी तकलीफ से बेएतनाई या आपकी खुशियों को अहमियत न देने में वाज़ेह होता है। कुरान मजीद मुसलमानों को रहम दिल और हमदर्द बनने की तलकीन करता है और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमदर्दी का फिक़दान एक सख्त दिल की अहम इलामत है। ऐसे अफराद आपके जज्बात को नजरअंदाज करते हैं, आपके तजुर्बात को कम अहमियत देते हैं या उन मौक़े पर सर्द महरी का मज़ाहिरा करते हैं जहां मेहरबानी और समझ बूझ की जरूरत होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी की अहमियत पर जोर देते हुए फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। अगर आप महसूस करें कि कोई शख्स मुसलसल आपके जज्बात या दूसरों के मसाइल के लिए बेहसी जाहिर कर रहा है तो उसे एक इंतबाह समझें। खुद को ऐसे लोगों से दूर रखें और इन लोगों के करीब रहें जो अपनी मेहरबानी और रहम दिली से आपको बुलंद करें। निशान नंबर 7, वो लोगों को तकसीम करते हैबरे दिल वाले शख्स का एक और खतरनाक रवैया ये है कि वो लोगों के दरमियान दिराड़ें पैदा करता है। वो दोस्तों, खानदान या साथियों के दरमियान इख्तिलाफात को हुआ देता है और गलत फहमियां पैदा करके दूसरों को एक दूसरे के खिलाफ करता है। उनका मकसद लोगों को तन्हा करना और इत्तेहाद को तोड़ना होता है। कुरान पाक हमें इस बारे में खबरदार करता है, शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बग़ज़ डाल दे। ये लोग अक्सर अफवाहें फैलाने, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने या हालात को इस तरह मोड़ने की कोशिश करते हैं कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। वो ऐसे माहौल में खुश होते हैं जहां अफरातफरी हो और वो खुद उसके मरकज में रहें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रवैये की मजम्मत करते हुए फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो झगड़ालो हो। अगर आप देखें कि कोई शख्स तनाज़ा पैदा कर रहा है या इख्तिलाफात को हुआ दे रहा है तो इसे इंतबाह समझें। अपने ताल्लुकात को इनके
منصوبوں سے محفوظ رکھیں اور سمجھ بوجھ اور اتحاد کے پل بنانے پر توجہ دیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی حفاظتان علامات کو پہچاننا آپ کے دل، سکون اور ایمان کی حفاظت کا پہلا قدم ہے۔ اسلام واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ نقصان دہ افراد سے کیسے نمٹا جائے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، واضح حدود مقرر کریں اور دعا و ذکر کے ذریعے اللہ کی حفاظت طلب کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرے، اس مومن سے بہتر ہے جو نہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور نہ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں نقصان دہ اثرات کو پہچاننے اور ان سے بچنے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنی اقدار پر ثابت قدم رہنے کی طاقت عطا کرے اور ہمیں ایسے ساتھیوں سے نوازے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ آمین۔